Very happy 74th Republic Day to all of you. And also, this occasion coincides with another auspicious day. Today is also Saraswati Puja, so very happy Saraswati Puja to all of you. As just mentioned, India is passing through or has been passing through a very challenging period right now. As you know, it is 74th year of Republic Day, and we have got our independence. We got our independence in the year of 1947, so we are almost 76 years of independence also. But if you see the overall development of the country, the progress would have been much better in this last 76 years. Just in the current financial year, we have become the 5th largest economy, surpassing UK or United Kingdom, which once upon a time, or almost 76 years back, they used to rule us. So it's a great pride for us that we have become the 5th largest economy in the world now, surpassing the country who ruled us for almost 200 years. But it's still a long way to go. Per capita income of Indian individuals, if you see, in the dollar terms, it is not even $2,000 per capita per annum. Whereas average per capita income should have been in the range of $9,000 or $10,000. So we have a long way to go. So economy needs to be boosted up, but challenges are many. Challenges not in the front of domestic challenges, it is also the international challenges which we have. It's now almost a year now that Ukraine-Russia war is going on, and that has impacted not only the global supply chain, it has also impacted the balancing of political balance of the universe. Once upon a time, it was thought of that the whole thing will become global. The supply chain will become boundaryless. Materials will come from one country, get produced or get assembled in another country. But today, gradually, what we are seeing, the global supply chain is gradually becoming a local supply chain. So it's a challenging environment for us, because for a lot of things we used to depend on other countries because our technology was not that great. Probably all of you might be knowing that chip shortages which was there last year or during the COVID year, and because of that, lot of our electronics item could not be manufactured to the requirement. So therefore, we need to upgrade our technology. Our government of India has taken an initiative which is known as Atmanirbhar Bharat. That means everything which we consume should be produced in India only. So we are working on that, and progress so far not great, I would say, not to the expected mark or expected level. But obviously, it is not the work of only government, so a lot of private partnerships are coming up. So we are expecting that, we are hopeful that we will be able to make those changes or make those products. We need to become a good manufacturing base, otherwise we will have issues. The whole development of other countries, if you see, whether it is China, whether it is Japan, whether it is United States, they have a very strong manufacturing base. Our manufacturing sector is still weak in the sense we have only 16% of GDP comes from manufacturing. So we need to put more focus on manufacturing, which government is doing. And also, as citizen of the country, our role becoming very, very important in that, because we need to support government in taking this manufacturing initiative forward.
I think we have a huge challenges at hand, but uh, also we have a good support system now available to move forward, and it will be the responsibility of each and every citizen, particularly the young one, which are becoming the most highest working level population in the world in India. So therefore we need to have a more resolute mind to move forward. So once again, very happy Republic Day to all of you, and thank you. हिंदुस्तान है हिंदुस्तान मेरा दूसरा है जापान की हिंदुस्तान है हिंदुस्तान समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी दिल है हिंदुस्तानी दिल है हिंदुस्तानी दिल है हिंदुस्तानी दिल है हिंदुस्तानी आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला सारे जहां से अच्छा
चाहे तो हाथों से लकीरें चुरा धर्मस्य ददात्मसृजामहं परित्राणाय साधूनां च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे। सुप्रभात। जैसा कि आप लोग गाए गए श्लोक का अर्थ समझ ही गए होंगे कि हर युग में समाज की सुख शांति के लिए कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है। सन 1851 में भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया और हमारे सुख शांति के लिए हमारा संविधान बनाया। हमारे संविधान को बनाने में कठिन संविधान सभा को कुछ 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। मैं संविधान हूँ। मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आप सबकी सुख शांति के लिए बनाया, लेकिन हमारे देश के आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी मैं पूरी तरह से अपनाया नहीं गया। मुझे लोग टोकते हैं, मेरा उपहास उड़ाते हैं। यदि मैं टूट गया, मेरी सांसें रुक गई तो तुम सबका क्या होगा? इसलिए मुझे जानो। पिताजी, वो मुझे एजुकेशन ट्रिप के लिए आगरा जाना है। क्या तुम्हें स्कूल की तरफ से आगरा जाना है? कभी नहीं, तुम एक लड़की हो। हाय डैड, क्या हाल चाल? बस बेटा सब ठीक। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है। वो डैड, मुझे अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने जाना है, तो क्या आप मुझे 10,000 रुपए दे दोगे? अरे तू तो मेरा लाडला बेटा है, तू 10 या 15,000 रुपए ले जा और घूमा। थैंक्स डैड। यह क्या पिताजी, मैं लड़की हूँ तो इतना सब भेदभाव? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? हाँ, जीने का अधिकार। संविधान में सभी को जीने का अधिकार है। यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अरे बापूजी, मैं तो ठीक ही चल रहा था, आप ही गलत चल रहे हो। क्या तुम हमसे मान लाओगे, अंधे कहीं के? अरे बापूजी, मैं अंधा हूँ तो क्या हुआ? ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है, मैं वैसा ही धरती पर आया हूँ। क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। सभी को समानता का पूरा पूरा अधिकार है। यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सर, मुझे एडमिशन चाहिए। वाह, तुम तो इस परीक्षा में प्रथम आई हो, पर फिर भी तुमको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं और तुम एक मजदूर
छात्रवृत्ति से यहाँ पढ़ने का पूरा अधिकार है। हाँ है, बिल्कुल है। सभी को शिक्षा का पूरा पूरा अधिकार है। यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। प्यारे कुललक्ष्मी, दहेज वहेज तो लाई नहीं और नखरे तो देखो। बेटा, मैं तो कहती हूँ इससे छुटकारा पा लो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे भी जीने का अधिकार है। बस हाँ, बहुत हो गया। मेरा भी संवैधानिक अधिकार है। मैं चाहूँ तो पूरे हक से आप दोनों के खिलाफ आवाज उठा सकती हूँ। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? घरेलू अत्याचार और शोषण के खिलाफ अधिकार है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। रुक जाइए, आपने सर्किल के नियमों को तोड़ा है। आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा। अरे तुम हमें जानते नहीं क्या? हम विधायक के बेटे हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी है। विधायक के बेटे हो तो क्या हुआ, नियम सबके लिए बराबर है। आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा, चाहे आप विधायक के बेटे हो या किसी के भी। और अच्छा होगा कि आप अगले बार का जुर्माना भी अभी दे दें। आप तो विधायक के बेटे हैं। सही बात है, नियम सबके लिए बराबर है, चाहे आप मंत्री के बेटे हो या शास्त्री के। सिया राम, जय जय राम। सिया। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हिंदुओं का इलाका है, आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन क्यों? ये तो हमारा धार्मिक अधिकार है। नहीं, यहाँ नहीं। उठिए, आप यहाँ भजन नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि ये हम मुसलमानों का इलाका है। लेकिन ये हमारा धार्मिक अधिकार है। नहीं, ये सब कुछ नहीं। सही बात है, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी को अपने धर्म का पालन करने का पूरा पूरा अधिकार है। चलिए हम सभी अपने अधिकारों को जानें। आजादी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, घरेलू अत्याचार और शोषण के खिलाफ अधिकार, संवैधानिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। आइए 74वें संविधान को बनाते हुए हम सभी प्रण लेते हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप संविधान की प्रतिज्ञा के लिए अपना हाथ आगे करें। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके अपनी संविधान सभा में एक होकर इस संविधान को अंगीकृत अभिनियमित और आत्म प्रतीक करते हैं। धन्यवाद।
कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है। आहा एक है, ओहो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अजान। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अजान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक है हम, लेकिन जगमग एक है। आहा एक है, ओहो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है। आहा एक है, ओहो एक है। हम सब